In this class, we are going to start our eubacteria properties, that is the properties of the cells of the eubacteria. So we have already studied about the types of shapes or the types of associations that are present in the eubacteria. That is, in the previous class we had studied about the coccus or the streptococcus or the staphylococcus or the rod-shaped bacteria which were bacillus, and likewise we have already studied about different forms of bacteria, and we also have studied about another form like spirochetes or the spirillum or the vibrio. So those were the different forms of bacteria or different associations of the bacteria, and from this class we are going to start the properties of the bacterial cell, that is what are the characteristics of the cells or their structures. For example, we know that cell is formed of cell membrane, nucleus, cytoplasm, cell organelles. So in the case of eubacteria, these cell organelles and especially the cell membrane or the cell wall is different from the archaebacteria or the eukaryotes, that is the membrane bound cell organelle containing cells. So in this class we are going to start the properties of the cells or the cellular structures in the case of eubacteria. So first of all, if we consider the number of organelles or the structures that are present inside the bacterial cell in the case of eubacteria, we find that none of the similarities or none of the cell organelles that are present in the case of eukaryotes are present over here. So every structure that is present over here is almost unique to this category, but still there are some things like DNA or the RNA or the amino acids or the other structures like cell membrane. So these structures are also found in the case of eukaryotes, but their properties, their types and their constituents are different from eukaryotes. So first of all, we look at the structures that are present in the cell. So first of all, we have cell wall. So we are already seen that in the case of 5 kingdom classification of R.H. Whitaker, we had cell wall in Monera, Protista, fungi and also in Plantae. So these 4 categories of organisms do contain cell wall. So here cell wall was be present, but we will later study the properties of the cell wall. So cell wall, cell membrane is also an enclosing membrane of the content of the cell or the cytoplasm. Then we have nucleoid. Instead of nucleus which is present in the eukaryotes, we have nucleoid. And then the cytoplasm, that is the fluid composition of the protoplasm in the case of bacteria. तो यहाँ पे cytoplasm है, and then we have the plasmid. So plasmid is also a sort of genetic material, but not exactly in the sense that it is not essential for the bacteria for its survival, but it had certain properties which will ensure that the bacteria could survive because of some resistance to antibiotics. So this plasmid is not exactly the genetic material of the bacteria, but still it contains DNA, and we will see later what is and what it does. And then we have the glycocalyx. So glycocalyx is a sort of envelope which we are going to study here. So after glycocalyx we have certain inclusion bodies. So we can say that these inclusion bodies are simply storage bodies. They store certain things which we will study later. And then we have pili, flagella, fembrae, and these have certain structures like flagella helps in movement, fembrae helps in attachment, pili helps in conjugation. So there are different structures over here which we are going to study one by one. So the first structure that we have to study is the cell envelope, and cell envelope contains 3 parts together, and the first part or the outermost part is glycocalyx. Then we have the inside layer which is called the cell wall, और cell wall के अंदर में the structure which will be interior to the cell wall will be the cell membrane, which we will study in the next slide. So we are going to start from cell envelope. तो ये जो सेल एनवेलप होता है, दिस कंपोज्ड ऑफ 3 layers, we already know, glycocalyx, cell wall and cell membrane. So this cell envelope is the covering of the bacteria, or it is the enclosing structure of the bacteria, and it has certain thickness which will depend on the thickness of glycocalyx, cell wall and also on the thickness of cell membrane. So it can occupy a lot of volume in the case of bacterial cell. So we are not concerned with much with the volume that it occupies in the bacterial cell, but we will be studying the layers which form the cell envelope and what are their functions.
So let's start from the first layer, and that is the outermost glycocalyx. So this glycocalyx layer is also known as mucilage layer. So there are different forms of this glycocalyx which we will study. So first of all, this glycocalyx is the outermost covering of the bacteria. बैक्टीरिया में glycocalyx के बाहर में कोई भी और स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है. So this is the outermost. Now we come to its composition. तो अगर हम इसकी composition की बात करें, then it is formed of polysaccharides. You must have studied about some substances called starch or cellulose or amylose or amylopectin, or these structures are normally called as polysaccharides. So these are a type of carbohydrates. So ये जो polysaccharides हैं, ये किससे बने हैं? कार्बोहाइड्रेट से बने हैं. इसके अलावा इनमें थोड़े से पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं. So you must be knowing what is polypeptide or proteins, because प्रोटीन्स के पार्ट्स को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, या फिर कई केसेस में पॉलीपेप्टाइड्स इतने बड़े होते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन बोला जा सकता है. सो नॉर्मली इफ यू आस्क व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, then polypeptide is a smaller part of a protein, but generally there are some polypeptides which are also considered as proteins. So polypeptides are not as common as the polysaccharides. That is, I have written some polypeptides, not a lot of polypeptide will be present in the glycocalyx, and it is the outermost. As you can see from these three layers, this is the outermost, this is the middle, and this is the inner layer. So this glycocalyx is the outermost coating of a bacterial cell. Now we come to the forms of this glycocalyx. यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स का मॉडिफिकेशन हो सकता है. तो ग्लाइकोकैलिक्स कहीं कहीं पे काफी लूज कवरिंग की तरह रहता है. दैट इज शीथ मींस कवरिंग. तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स काफी लूज है, काफी ढीला कवरिंग की तरह बिहेव कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर. अगर ग्लाइकोकैलिक्स काफी लूज है तो उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर. नाउ वी कम टू द अदर फॉर्म, यानी कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स काफी थिक है और काफी टफ है, तो अगर टफ और थिक है तो उसे हम बोलते हैं कैप्सूल. सो इसकी प्रॉपर्टी है थिकनेस एंड टफर. तो दोनों ग्लाइकोकैलिक्स ही हैं. स्लाइम लेयर इज लूज, कैप्सूल इज टफ एंड थिक. तो कई सारे बैक्टीरिया में देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स में डिजीज करता है. बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरे और साल्मोनेला टाइफी, ऐसे ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं. तो उन बैक्टीरिया में जो ये कैप्सूल होता है और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, ये बहुत बड़े रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिजीज करने में. तो बैक्टीरिया को ये प्रोटेक्ट करता है, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है. तो फर्स्ट लेट्स लुक एट द फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. सो ग्लाइकोकैलिक्स की जब हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है कि ये फैगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करता है. Now you might have studied about phagocytosis in your standard 10th. तो हमारी बॉडी में there are certain cells, हमारी बॉडी के अलावा मैमल्स में भी होते हैं, बाकी मैमल्स में भी होते हैं white blood cells. So this is WBCs means white blood cells. तो हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी व्हाइट ब्लड सेल हमें इम्यूनिटी देते हैं डिजीज से. तो उसके लिए वो क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को खा जाएंगे. दैट इज द WBCs और द व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स वुड एंगल्फ द बैक्टीरिया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज phagocytosis. So this phagocytosis process kills the bacteria and also the WBC. So this phagocytosis process is the actual killer of this bacteria. So this glycocalyx or the capsule, then this is the most important version of glycocalyx. So this glycocalyx protects us from protects this bacteria from phagocytosis by white blood cells. So white blood cells इस ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाते, यानी कि बैक्टीरिया को वो इजीली एंगल्फ नहीं कर पाते हैं. तो बैक्टीरिया को ये प्रोटेक्ट कर रहा है व्हाइट ब्लड सेल से. नाउ वी कम टू द डेसिकेशन पार्ट, यानी कि जब भी बैक्टीरिया ड्राई हो जाता है या फिर इन्वायरमेंट बहुत ड्राई है, उससे ये प्रिवेंट करता है, यानी कि मॉइस्चर का जो लॉस होता है. डेसिकेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर या मॉइस्चर. तो इसको ड्राई होने से बचाता है. उसके अलावा ये स्टिकी बनाता है बैक्टीरियल सेल वॉल को. डेसिकेशन से प्रिवेंट कर रहा है, स्टिकी कैरेक्टर दे रहा है. स्टिकी कैरेक्टर का फायदा क्या है
बैक्टीरिया हमारी बॉडी के सेल्स के साथ अटैच हो सकता है या फिर किसी भी सरफेस से वो एडहर हो सकता है, यानी कि इसमें गमी कैरेक्टर होता है या स्टिकी कैरेक्टर होता है. दैट इज इट कैन हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैच टू अ सरफेस एंड दैट सरफेस मे बी अ स्टोन और अ रॉक or any living tissue. It could be any living cell also, because the normal size of the human cell is much larger as compared to a normal bacterial cell. So this capsule layer or this glycocalyx layer provides the sticky character, it provides a sticky feature or property to the bacteria, and that bacteria could get attached to a cell or tissue. So this is the benefit that it is providing. Now there is another benefit, that is virulence chemicals. बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बोल सकते हैं या बायोकेमिकल्स भी बोल सकते हैं. तो ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये बीमारी कर सकते हैं, ये बहुत तरह के डिजीजेस को फॉर्म कर सकते हैं. तो उन केमिकल्स का जो स्टोरेज होता है वो इसी ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर में होता है. यानी कि वायरुलेंस मींस द एबिलिटी और द extent to which a bacteria can cause a disease. So different bacteria have different degree of virulence. So virulence को एक common word के साथ use किया जाता है, that is called as pathogenicity. तो नॉर्मली वायरुलेंस को पैथोजेनिसिटी के साथ यूज किया जाता है. इट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, इट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग. तो वायरुलेंस क्या हो गया? वायरुलेंस इज द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू कॉज द डिजीज और द एक्सटेंट or the degree to which the bacteria can cause a certain disease. So instead of virulence we can also find at some places pathogenicity. So pathogenicity and virulence is the same thing almost. So this was about glycocalyx and these are the advantages or the functions of glycocalyx. Now we come to the second layer and that is the cell wall. So normally you must have studied that plant cells are very famous for having a cell wall. So plant cells cell wall has a polysaccharide and that is called as cellulose. So here also we have a cell wall, but this cell wall does not contain cellulose just like plant cells. So this is different from a normal plant cell and we have to understand very much about about bacterial cell wall, and especially there is something called peptidoglycan. So this peptidoglycan is an extremely important point over here. Many times question could be asked from the peptidoglycan part. So peptidoglycan is a very important component of the bacterial cell wall. तो यहाँ पर सेल्यूलोज नहीं है, सेल्यूलोज के जगह पे हम कह सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन है या फिर अदर मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन भी होगा. सो जो सेल वॉल है ये एक रिजिड या फ्लेक्सिबल दोनों लेयर है. इट कुड बी रिजिड और इट कुड बी फ्लेक्सिबल, और हम आगे देखेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो यहाँ पर है यही सेल वॉल को रिजिड भी बनाता है और फ्लेक्सिबल भी बनाता है. सो विल स्टडी हाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिजिड और फ्लेक्सिबल. नाउ फ्रीली परमिएबल कवरिंग, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में 3 तरह के मेम्ब्रेन्स, दैट इज फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये 3 टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं और ये जो सेल वॉल है इट इज अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो इंस्टेड ऑफ कवरिंग वी कैन ऑल्सो राइट फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो कवरिंग बोले या मेम्ब्रेन बोले इट्स द सेम थिंग, इट इज द सेम मीनिंग मेम्ब्रेन. फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन हम उसे कहते हैं जो कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट का या इवन बड़े साइज का जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसका मूवमेंट उसके थ्रू इजीली हो जाता है. सो दिस मेम्ब्रेन डज नॉट कॉज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द मूवमेंट ऑफ नॉर्मल साइज सॉल्यूट्स और द सॉल्वेंट्स. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन और फ्रीली परमिएबल कवरिंग वी कैन से. नाउ इट लाइज इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज ये ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाला लेयर है. एंड इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रोवाइडिंग शेप. तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका शेप किस लेयर से डिटरमाइन होता है? सो द शेप ऑफ द बैक्टीरिया इज डिटरमाइंड बाय दिस सेल वॉल लेयर, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल. लेकिन इन तीनों लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल वॉल का जो पेप्टाइडोग्लाइकन पार्ट है. तो ये जो सेल वॉल है ये बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करेगा, यानी कि
what the shape of the bacteria would be, that would be determined with the help of cell wall. So this is the determining factor of the shape of the bacteria. Now we come to the other part. It has peptidoglycan. We are going to study peptidoglycan in detail. So first of all we are going to study the other constituents. तो other constituent में हो जाएंगे amino acids, उसके अलावा lipids, proteins, and this part is important, non-cellulosic carbohydrates. तो हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है कि जो नॉन सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। सेल वॉल यहां भी है, प्लांट्स में भी है। प्लांट्स में सेल्यूलोजिक होंगे, यहां पर नॉन सेल्यूलोजिक, दैट इज व्हाई आई हैव स्पेसिफिकली रिटन दैट यहां पर नॉन सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। एंड उसके अलावा लिपिड्स जिसके अंदर फैट्स और ऑयल्स आते हैं, फिर प्रोटीन्स, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज प्रोटीन, एंड आल्सो द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। और यहाँ पर कुछ फ्री अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। फ्री अमीनो एसिड्स आर दोज विच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पर फ्री अमीनो एसिड्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं। सो नाउ वी हैव टू स्टडी दिस पेप्टाइडोग्लाइकन पार्ट इन डिटेल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होता है या इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बैक्टीरिया के सेल वॉल का। तो व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन? सो इट इज अ शुगर पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन पार्ट है ये दो चीज से बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट कौन है, शुगर, और फिर पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या होते हैं, प्रोटीन्स के छोटे छोटे पीसेस को हम पेप्टाइड्स कहते हैं। तो यहां पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स है, और प्रोटीन में कौन है, पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट में कौन है, शुगर। तो इन दोनों का ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। Now it is composed of repeated framework of NAG and NAMA. तो NAG means N-acetyl glucosamine and NAMA means N-acetyl muramic acid. तो इन दोनों के रिपीटिंग फ्रेमवर्क होते हैं और दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग होता है पेप्टाइड के थ्रू। तो नाग एंड नामा, दैट इज N-acetyl muramic acid and then we have N-acetyl glucosamine. So this is what is नाग एंड नामा। इन दोनों का रिपीटिंग फ्रेमवर्क होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, और दोनों को क्रॉस लिंकिंग कौन कर रहा है, दोनों को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, तो छोटे छोटे साइज के पेप्टाइड। तो हमने यहां पढ़ा था ना कि इसमें पेप्टाइड होते हैं, तो पेप्टाइड कैसे वो क्या करते हैं, तो ये क्रॉस लिंकिंग कर रहे हैं। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, बेसिकली एक शुगर पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें शुगर पार्ट क्या है, N-acetyl muramic acid और N-acetyl glucosamine। तो ये इसका नॉर्मली शुगर पार्ट हो गया। तो ये शुगर पार्ट को कौन कनेक्ट कर रहा है, शॉर्ट पेप्टाइड। तो शुगर पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर। अब पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो प्रोवाइड करता है सेल वॉल को स्ट्रेंथ, यानी कि जब बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो बैक्टीरिया का सेल है वो बर्स्ट नहीं करता है। The bacterial cell will not burst after absorbing a lot of water. Why? Because this peptidoglycan layer is providing strength to the cell wall and it will prevent the cell from bursting in a hypotonic solution. So you must have studied about hypotonic, isotonic and hypertonic solution. तो जब हम बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो बैक्टीरियल सेल बर्स्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिस पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू व्हाट, टू द सेल वॉल एंड हेंस टू द बैक्टीरिया। उसके अलावा ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। ऊपर में हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियल सेल है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है या इलास्टिक भी है ये। तो ये लेयर, ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है? ये आ रही है रिजिड और फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी आ रही है पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से। नाउ वी सी कि हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया बहुत तरह से बीमारी कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी जैसे टेटनस हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, बहुत सारे डिजीजेस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर कर सकता है। तो हमारी बॉडी की अपनी एक डिफेंस सिस्टम होती है जिसमें कि मेन रोल प्ले करते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, जैसे कि ब्लड में पाए जाते हैं या लिम्फ में पाए जाते हैं या कहीं कहीं पर ब्लड या लिम्फ से बाहर आ सकते हैं, WBCs। तो हमारी बॉडी के अंदर जब बैक्टीरिया अंदर आ जाता है तब हमारी WBCs बैक्टीरिया से फाइट करती हैं।
लेकिन जनरली जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ रहा होता है तो कुछ सर्टेन साइट्स के थ्रू आ सकता है, जैसे कि हमारी आंख से जा सकता है बैक्टीरिया, या फिर हमारे मुंह से अंदर जा सकता है। तो हमारे मुंह में होता है सलाइवा, और हमारी आंख से में जो वाटर होता है विच इज नॉर्मली कॉल्ड एज टीयर्स, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंसू। तो दिस टीयर और द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम। सो ये जो लाइसोजाइम होता है इस बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को ब्रेक डाउन कर देगा, यानी कि इट विल डिस्ट्रॉय और disintegrate or digest the peptidoglycan layer of the bacteria. Therefore the bacteria would undergo lysis or death. तो बैक्टीरिया का जो डेथ हो रहा है वो लाइसोजाइम या फिर सलाइवा में जो प्रेजेंट है या टीयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा है। तो उस बैक्टीरिया से जो हमें बीमारी हो सकता है उससे हम प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये जो लाइसोजाइम है बेसिकली हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है इसी पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, इसी पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा आंसू या हमारा जो सलाइवा है हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सके, इसी वजह से कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं और हमें बीमारी कर सकते हैं वो बैक्टीरिया। उसके अलावा हम बहुत कॉमनली एंटीबायोटिक्स के बारे में सुने होंगे अपने। तो जब भी हमारी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर्स जनरली हमें एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमें एक सर्टेन एंटीबायोटिक पढ़ना है जो कि किसका नाम है, पेनिसिलिन। सो दिस पेनिसिलिन वुड प्रिवेंट द क्रॉस लिंकिंग, यानी कि यहाँ पर भले ही लाइसोजाइम की तरह ये पेनिसिलिन बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकन को टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, लेकिन व्हाट इट इज डूइंग, इट इज प्रिवेंटिंग द क्रॉस लिंकिंग ऑफ नाग एंड नामा, दैट इज N-acetyl glucosamine and the cross linking it with the N-acetyl muramic acid। तो इन दोनों को ये क्रॉस लिंकिंग नहीं करने देगा, तो इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। सो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं या फिर हमारी सलाइवा में ये जो प्रेजेंट है ये बेसिकली बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकन पे असर करता है या उस पे वर्क करता है और उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसकी वजह से पेनिसिलिन या सलाइवा में जो लाइसोजाइम है उससे हम लोग बैक्टीरिया से प्रोटेक्टेड होते हैं। सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट टू पार्ट्स ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स और द cell envelope, that is the glycocalyx and the cell wall. Now we'll study the inner layer of this cell envelope and that is the cell membrane. So now we are going to study the cell membrane. Now we would study about the cell membrane of prokaryotes or the bacteria in this case. So cell membrane जो होता है यहाँ पर वो cell membrane बना होता है लिपिड्स के बाइलेयर का। लिपिड्स के बाइलेयर का मतलब होता है कि यहाँ पर लिपिड का दो लेयर होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो लेयर का बना होता है इन दिस केस। सो दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज कि ये सेल एनवेलप में हमने देखा था कि सबसे अंदर में क्या है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल में हमने देखा था कि वो फ्रीली परमिएबल था, लेकिन यहाँ पर ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सो दिस इज वन डिफरेंस फ्रॉम देयर, दैट इज ये जो मेम्ब्रेन होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इट इज द सेलेक्टिवली परमिएबल और वी कैन आल्सो से इट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो सेल वॉल से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नाउ सेल मेम्ब्रेन को या फिर हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली सेल ऑर्गेनल्स को सराउंड करता है और सेल मेम्ब्रेन पूरे सेल को सराउंड करता है। But still we have to understand the differences between plasma membrane and cell membrane in chapter number 8. So there we would differentiate between plasma membrane and also cell membrane. But here we can refer it to as a plasma membrane. So the plasma membrane does not contain cholesterol, यानी कि यहाँ पर cholesterol is absent in the cell membrane. So cholesterol is a type of sterol. So we will study about cholesterol, triglycerides, monoglycerides, sterols and everything like that in chapter number 9, that is biomolecules. So यहाँ पर इनके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स दैट इज हम लोग में या फिर जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ ग्रेट स्टेबिलाईजर, ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईज करता है, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन उसके जगह पर कुछ अलग तरह के केमिकल्स जिन्हें हम होपानॉइड्स कहते हैं, होपानॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सभी बैक्टीरिया में नहीं, ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, नॉट इन ऑल बैक्टीरिया। तो ये होपानॉइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल की जगह पे पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल में। अब बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है
and this is what we are going to study in detail in chapter number 8. तो मीजोजोम्स जो है ना, मीजोजोम्स एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन्स की. सो ये जो मीजोजोम्स है इनमें बहुत सारी एक्टिविटीज हमें पढ़नी है चैप्टर 8 में सेल में. यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, डीएनए सिंथेसिस हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं मीजोजोम्स के अंदर. लेकिन ये मीजोजोम बेसिकली होता क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग की वजह से, सपोज कि ये जो एक मान लो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर इनफोल्डिंग हो जाएगा, यानी कि अंदर की ओर इसमें इनफोल्डिंग हो जाएगा. तो इसी के इनफोल्डिंग से अलग अलग शेप और साइज के भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी ऐसे हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं. तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनते हैं ये मीसोजोम. सो दिस इज मीसोजोम, दीज आर द मीसोजोम. तो इनके अंदर बहुत सारी चीजों के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल द एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन और लिपिड सिंथेसिस. इसके अलावा यहाँ पर और भी एंजाइम्स हो सकते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल सिंथेसिस. तो देयर आर दिस मीसोजोम्स आर अ साइट ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी. और इस मीसोजोम्स को हमें डिटेल में पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में. तो जब बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे वहां पर, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर ये देखेंगे कि इन मीसोजोम्स के अंदर बैक्टीरिया का ऑलमोस्ट हर फंक्शन होता है. तो बैक्टीरिया के अंदर ज्यादातर जो फंक्शंस होते हैं वो मीसोजोम्स के अंदर ही होते हैं. सो दीज मीसोजोम्स आर बेसिकली इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बैक्टीरिया में तो सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होने चाहिए वो तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. लेकिन उसी के प्लेस पे बैक्टीरिया के अंदर मीसोजोम्स है, एंड दीज मीसोजोम्स आर बेसिकली पार्ट और स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच आर इनफोल्डेड. तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की, सेल ऑर्गेनल्स की जगह पर सेल मेम्ब्रेन से क्या बन रहा है यहाँ पर, मीसोजोम्स. तो इस मीसोजोम्स को हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स करते हैं, जैसे कि प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर मीसोजोम्स परफॉर्म कर रहे हैं. सो दिस वाज अबाउट द नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया और द प्रोकैरियोट्स. तो यहाँ पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे टर्म कर रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग इट एज सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिफरेंसेस है ये हम चैप्टर 8 में पढ़ना है. यहाँ पर बस हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो नॉर्मली सेल ऑर्गेनल्स को सराउंड करता है, और सेल मेम्ब्रेन पूरे सेल को सराउंड करता है, यानी कि साइटोप्लाज्म को भी सराउंड करता है. So cell membrane is also a type of plasma membrane, and there are lots of other differences which we will study in chapter number 8, that is the cell chapter. So now we have completed the cell envelope of bacteria. तो cell envelope में सबसे बाहर में था हमारा glycocalyx, फिर cell wall और फिर cell membrane. So these three structures are the cell envelope of bacteria which are covering the bacteria from all sides. So now we have completed the cell envelope.